जहाँ धरती का सौंदर्य वृक्षों की हरियाली में मुस्कुराता है, वहीं वन रक्षक प्रकृति की निस्वार्थ सेवा में समर्पित करते हैं अपने जीवन को। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज हम साक्षी बन रहे हैं एक ऐसे पल के जहां कर्तव्य, सेवा और प्रशिक्षण तीनों मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में, जहां भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस भव्य दीक्षांत समारोह में। हरियाली से परिभाषित भारत के भविष्य को समर्पित एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा 2023-25 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। प्रकृति संरक्षण, पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास जैसे मूल्यों को आत्मसात करते हुए इस वर्ष कुल 111 अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिनमें 22 महिलाएं भी शामिल रहीं। इनमें से 109 प्रशिक्षुओं को भारतीय वन सेवा में नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन। उन्होंने अधिकारियों को न केवल बधाई दी, बल्कि उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और मानव अधिकारों के प्रति सजग रहकर कार्य करने की प्रेरणा दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक वन अधिकारी को नीतियों और विज्ञान की समझ के साथ साथ न्याय, सेवा भाव और समुदाय से जुड़ाव की भावना भी होनी चाहिए। A government servant enters a service and not a job. In fact, if you are working in an employment, working in a company or a factory, you are only in employment. It is governed either by the law of contracts or by the labor welfare legislations. But if you are a government servant, you have the protection of the Constitution of India. Consistency is one virtue, but I don't tell you to be consistently bad. It may not be possible to be consistently good to everybody, because if you are good to one, automatically you become bad to somebody else. But maintain that consistency. The last lesson which I have learned in my life is whatever you give automatically comes back. It is a guarantee that I have seen in my life. You cannot take anything out of somebody for nothing. You will have to give it back one day or the other, willingly or unwillingly, knowingly or unknowingly. Similarly, you cannot reject anything that comes to you, which is a reward for whatever you have done. What you give will come to you manifold. If you give 1 rupee, it will come to you 10 years after as 10 rupees. But remember, if you take away 1 rupee from somebody, you will also have to lose 10 rupees after 10 years. What you give comes back manifold. What you take also has to be returned manifold.
This is the story that I would request all of you to carry home. समारोह में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश भर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वन सेवा से जुड़े विशेषज्ञ और शैक्षणिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने इस आयोजन को प्रेरणादायक और स्मरणीय बताया। अब ये नव प्रशिक्षित अधिकारी देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन और जैव विविधता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। I have received 3 medals, one for Sanjay Gandhi Memorial Forest Prize for securing the highest marks in forest ecology and biodiversity assessment, one for working plan exercise. So these are the 2 medals which I have received, and I am very happy because I come from a town called Sivakasi in Tamil Nadu, and I have completed my graduation in computer science engineering. Post 4+ years of hard work, I had cleared UPSC Forest Service examination, and I have come here for 2 years of rigorous training, after which I have received these medals, and this is my first honor, academic honor, so I am very happy and I am looking forward to save the nation with great pride. आज हमारा कन्वोकेशन डे है और आज हम पास आउट हो रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग थी वो 2 साल की थी और हमने अगस्त में ज्वाइन किया था। अगस्त में जब ज्वाइन किया था तो हमने लबासना मसूरी में ज्वाइन किया था, वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हम नवंबर में IGNFA कैंपस में ज्वाइन किए। यहाँ पे हमारी जो है 20 महीने की ट्रेनिंग थी। तो यहाँ पे फील्ड एक्सरसाइज और क्लासरूम प्रोग्राम दोनों का मिक्स होता है। ज़्यादा फोकस जो होता है वो क्लासरूम प्रोग्राम पे से ना होके फील्ड एक्सरसाइजेज पे होता है, ताकि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड हम सीख पाएँ। भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण में अभी भाग हूँ। अभी वही ख़त्म हो गए हैं और हमारी डिप्लोमा मिले हैं अभी। और हमारी प्रशिक्षण 2 साल की थी और 2 साल में 4 महीने हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी था, और वो सब समाप्त होने के बाद ये हमें डिप्लोमा मिला है आज। मेरा मध्य प्रदेश कैडर है और लास्ट ईयर जैसे मैंने यही कॉन्वोकेशन हॉल में देखा था कि मेरे सीनियर्स लोग आए थे और ऐसे मेडल्स लेके गए, तो यहाँ भी इस बार हमें भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे मेडल्स लेके और ऐसे कैडर जाएंगे, अभी अच्छा काम करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर में जैसे मैं जाके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और वहाँ पे जाके बहुत ही काम करूँगा। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और सिल्वीकल्चर के जो भी काम करने का मुझे मौका मिलेगा, मैं अच्छे तरीके से करूँगा। आज हमारा कॉन्वोकेशन ख़त्म हो गया है। 18 महीने का ट्रेनिंग जो था आज पूरा समाप्त करके हमको आज डिग्री मिल रहे हैं। अभी अगले हफ्ते से हम लोग सब हमारा रेस्पेक्टिव स्टेट्स जाके हमारा जो अभी जो 18 महीने में जो सीखा है हमने वो जाके काम करना है। इन दिस एकेडमी हैज़ given us overall knowledge about the forestry, environment and various other sectors, and more importantly and the responsibilities of a government servant, and that all of us on behalf of all our batchmates I can say that we are eager
very eager to go to our cadres and discharge our duties and uphold the values of the Constitution which have been imbibed in us. इन प्रतिबद्ध अधिकारियों के माध्यम से न केवल भारत की हरियाली को नया विस्तार मिलेगा, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और सतत भविष्य की दिशा में भी एक सशक्त कदम बढ़ाया जाएगा। तो ये था भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह। एक नया संकल्प, एक नई शुरुआत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से दीक्षित होकर ये परिवीक्षार्थी वनों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।